Good morning, sir. All of you are getting my voice. Hello. सर गिटार बज रहे जैसे। Okay, okay. वॉइस आ रही है मेरी सभी को? Am I audible? सर क्लियरली नहीं आ रही है। Okay, okay. कि मेरी आवाज आ रही है सभी को अभी? सर ठीक है अब। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर। ओके ओके। सो हम लोग जहाँ तक डिस्कस किए थे उसी में अलोहा स्कीम हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। सो अलोहा में भी हम लोगों ने दो स्कीम्स पढ़ी थी। स्लॉटेड एक्सेस स्कीम दैट इज कॉल्ड CSMA. Clear? So we start with the CSMA process. I'm just sharing a screen. You can see. So in in this particular section, we will cover the CSMA portion. CSMA is also divided into two categories, that is CSMA CD and CSMA CA. Okay, so CSMA CD is exactly the CSMA CD आपका जो है वो है carrier sense multiple access with collision detection, and then CSMA CA is carrier sense multiple access with collision avoidance. Clear? So this is your PDF of the book Frozen. So I'm just moving that portion. These all things have been covered The already. Slotted screen yellow is and pure. not Now sharing. we will discuss. It might that the signal is right now. Hmm? Now the signal is good or not? More. Okay, so again I am sharing the screen. Just wait. Now the audio is clear or not? Much better, sir. Okay, okay, thank you. So we will start with the CSMA scheme. As I have told you that in case of CSMA, uh, the problem arises in the Aloha system is overcome, and the problem was that during the transmission, either in case of pure Aloha or slotted Aloha, uh, the collision may happen most of the time and the packet or frame get lost. Clear? So we just avoid this problem in this particular scheme. So in CSMA exactly,
before transmission, all the stations sense the medium, okay, sense the channel. That's why it is known as carrier sense. Clear? So each signal sense the path before the transmission, that it is it ideal or busy. Clear? If the channel is busy, then the station will wait for particular time instant, and after that it will repeat the process again. Clear? And if the channel is not ideal in condition, so it will send the data, but but in this also the collision, it doesn't mean that the collision will not happen in CSMA protocol. Collision still happen, but most of the time the the losing of the packets is much less than the slotted Aloha or pure Aloha system. Clear? So we just check that how the process may happen. So I'm just sharing the window. Is this PDF is visible to all of you now? Okay. Yes, sir. Okay. So I'm discussing about this CSMS protocol. So you can see that to minimize the chances, the first line is given to minimize the chances of collision and therefore increase the performance. This method was developed. Okay, that which I have already told you, to minimize the chances of collision. Clear? And to increase the performance, we use the CSMA protocol scheme. Okay, the chance of collision can be reduced, not avoided. The chance of collision may be reduced if a station. Okay, so the chance of collision may reduce if a station exactly detect that any kind of packet is not transmitted from other stations. Clear? So in this way, we can avoid the problem of collision. Clear? So in this method, it, all the stations first sense the channel before transmission. This is the major point you need to know. Sense before transmit. There is a point, sense before transmit. So before transmission, each station will sense the channel. Clear? But it cannot eliminate the collision. Still, it cannot eliminate the collision. It can reduce the collision, but not eliminate the collision. Clear? Yes, sir. Okay. The probability of collision will still exist because of propagation delay. There are two terms in this method you need to know. First one is propagation delay or propagation time, and another is transmission time. Clear? Propagation time is the time, you need to differentiate both of them. The propagation time is the time that is required for a station, or that is required by a packet to access from one point to another point. Clear? This is called the propagation time. Means if we have two nodes and there is a path, so if a packet starts from this station A and reaches to this point, that is the receiver side, so this total distance is called propagation time. That is represented by TP. Clear? And if we talk about the transmission time, the transmission time is what? It means the packet acknowledgement should also reach to the sender side. That is the transmission time. Means the overall time required to access, the overall time that a packet takes into the channel, that is called what? The transmission time. Means अगर सेंडर ने हमारा पैकेट रिसीवर की तरफ भेजा, फिर उसका एक्नॉलेजमेंट या पैकेट का रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट अगर सेंडर को मिल जाता है, तो इसका मतलब दैट इज द ट्रांसमिशन टाइम. यू कैन से द ट्रांसमिशन टाइम इज almost double or greater than the transmission time is much equal to or greater than
what? Twice of TP. This is the condition. TT is the transmission time and TP is the propagation time. इस जो transmission time आपको होगा वो two way है, means one side and another side. This is called transmission time, and propagation time is what? From one side to another side. Clear? Yes, sir. Okay. So we will check this. We will check this. Okay. So now we move to the next step. Of this PDF, we will move to the next step. This is the condition, you all know about this. This is the condition of the CSMA protocol. Clear? Means transmission time, or we can say CSMA CD अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो उसमें एक कंडीशन है कि जो ट्रांसमिशन टाइम है वो ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल होगा twice of propagation time. This is the major condition, you all know about this. Clear? So now we come to the next step. आप लोग अपना चैट बॉक्स में अटेंडेंस मेंशन कर सकते हैं रोल नंबर वाइज. क्लियर? सो दैट मुझको थोड़ा इजी हो जाएगा. आप लोग अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और बाकी मैं स्क्रीनशॉट भी लेता हूं. मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. आई थिंक HOD मैम भी ऐसा करती हैं, शायद चैट बॉक्स में अटेंडेंस बच्चों की लेती हैं, तो उससे थोड़ा इजी गोइंग हो जाता है. मैं अभी थोड़ा मेरे पास अटेंडेंस रजिस्टर वाला इशू है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दें विथ रोल नंबर, नेम एंड रोल नंबर. क्लियर? Okay, so now we come to the next step. Okay, so this is the diagram of the CSMA scheme. You can see there are 4 stations, A, B, C and D. Clear? A, B, C and D. So each slots is defined to means we can say each packet from the different stations have particular time slot. Clear? So as you can see that this is the area where each signal exists, means where A is sensing the signal. Clear? For packet transmission of its own. Clear? And you can see this is the area of the B where it senses the signal. Okay? And so that this is for station C, this is the area for station C and this is the area for station D. And in between the shaded portion, you can see the shaded boundary is the collision point. Clear? Where the signals, both signals exist, means अगर हमारे पास A का भी सिग्नल जा रहा है, B का भी सिग्नल जा रहा है, तो दोनों सिग्नल आपके इसी पोर्शन में एग्जिस्ट करेंगे. दैट इज in between that portion. Clear? This is the shaded portion. इसमें ही आपके दोनों सिग्नल एग्जिस्ट करेंगे. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे मान लीजिए A ने अपना पैकेट ट्रांसमिट किया, A वाले सेंडर ने अपना पैकेट ट्रांसमिट किया किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम T1 पे. ठीक है? फिर स्टेशन बी क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका सेंस करेगा मीडियम को कि मीडियम आइडल है कि नहीं. अगर उसको मीडियम उस समय आइडल दिख रहा है, मींस ए का पैकेट बी तक ट्रांसमिट नहीं हुआ है या उसको मिला नहीं है, तो उसको आइडल समझेगा और वो अपना भी फ्रेम भेज देगा एट टाइम. ठीक है? अपने टाइम T2 पे सपोज उसने अपना भी फ्रेम भेज दिया, बी ने भी. ठीक है? उसके बाद स्टेशन सी क्या करेगा, उसी मीडियम को सेंस करेगा. ठीक है? एंड फाइंड्स इज आइडल बिकॉज एट दैट टाइम द फर्स्ट बिट फ्रॉम स्टेशन बी हैव नॉट रीच स्टेशन सी. बी और सी के बीच आप देख सकते हैं इतना ज्यादा टाइम गैप है. दिस इज ए वेरी मच टाइम गैप. सो जब बी का पैकेट ट्रांसमिट हो चुका होगा तो सी तक वो नहीं पहुंचा और सी को उस समय लगा कि हमारा चैनल आइडल है, तो सी ने भी अपना पैकेट भेज दिया उसी टाइम पे. तो उस समय उसी के तुरंत बाद क्या हुआ कि बी का फर्स्ट बिट, जो पैकेट का फर्स्ट बिट था, जैसे मान लीजिए ये हमारा फ्रेम है,
इस फ्रेम में जो यहाँ वाला हमारा जो स्टार्टिंग फ्रेम है ये वाली बिट हमारी सी के पास पहुंच गई, दिस इज द सी पोजीशन। तो सी ने भी उसी टाइम पे अपना पैकेट भेज दिया, क्योंकि उस समय तक उसको आइडल लग रहा था कंडीशन। तो जैसे ही भेजा वो आपस में कोलाइड कर गया, मीन सपोज यहाँ कोलिजन हो गया। तो कोलिजन होने से क्या हुआ कि ए का पैकेट लॉस्ट वहां पे हो जाएगा, ठीक है। ए अपना पैकेट लॉस कर देगा वहां पे ड्यू टू द कोलिजन्स हैपन, क्लियर। सो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक। अब ए को कैसे पता चलेगा कि हमारा पैकेट लॉस हो गया है? या तो ए को दो तरीके से पता चलेगा कि मेरा ही पैकेट लॉस हुआ है, कि वो जब तक उस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट, उस पैकेट का रिस्पांस ना मिल जाए कि हमारा पैकेट रिसीव हुआ है, तब तक वो क्या करे, ट्रांसमिट करता रहे सिग्नल, किसमें, चैनल में। इस तरीके से उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि अगर वो रेगुलर चैनल में ट्रांसमिशन कर रहा है तो उसको ये पता चल जाएगा कि उसका पैकेट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो अपना ट्रांसमिशन बंद कर देता है, जैसे मान लीजिए 10 मिनट, जैसे मान लीजिए 1 मिनट या 2 मिनट के लिए उसने ट्रांसमिशन अपना कंटिन्यू रखा, उसके बाद अगर उसने ट्रांसमिशन बंद कर दिया, यानी पैकेट ट्रांसमिट करने के बाद, मतलब ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि सिग्नल्स आप रेगुलरली भेजते रहिए चैनल के अंदर, ठीक है, इसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए ए ने सेंस करना बंद कर दिया, तो उस टाइम पे क्या होगा, पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आया था, तो फिर ए अगर कुछ देर बाद फिर अपने आप को ट्रांसमिट करना शुरू करता है, तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि जो पैकेट उसको रिसीव हो रहा है एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, वो कोलाइड होके आ रहा है या किसका कोलिजन है, मींस उसका खुद का रिसीव्ड सिग्नल है, या बी का है, या सी का है, या डी का, उसको पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है, हो सकता है उसी का सिग्नल हो, लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो कोलाइड होके आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको रेगुलरली ट्रांसमिट करना पड़ेगा चैनल के अंदर सिग्नल, जिसकी जब तक वो अपने पैकेट का एक्नॉलेजमेंट ना प्राप्त कर ले, ठीक है ना। तो दिस इज द CSMA प्रोसेस, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा नीचे यहाँ पे, ठीक है। देयर इज अ डायग्राम, इसमें भी कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे वनरेबल टाइम, जो हमने आपको पहले भी बताया था वनरेबल टाइम के बारे में। वनरेबल टाइम क्या होता है CSMA में? इट इज द प्रोपागेशन टाइम। एग्जैक्टली मैंने बताया ना कि जो प्रोपागेशन टाइम है, जो सिग्नल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है, इसको प्रोपागेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को वनरेबल टाइम भी हम बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द टाइम नीडेड फॉर ए सिग्नल टू प्रोपागेट फ्रॉम वन एंड टू ऑफ द मीडियम टू द अदर एंड when a station sends a frame and any other station tries to send a frame during this time, उसी टाइम पे अगर कोई और स्टेशन फ्रेम भेजता है तो collision will result, clear. But if the first bit of the frame reaches the end of the medium, every station will already have heard the bit and will refrain from sending. मतलब जो मान लीजिए A वाले ने फ्रेम भेजा, फ्रेम में जो फर्स्ट बिट है, अगर वो फर्स्ट बिट जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसमें देखिएगा, दिस इज द फ्रेम, क्लियर। ये जो हमारा है ये फर्स्ट पोजीशन बिट है, ऐसे और भी होंगे 0 1 व्हाटएवर इज दैट। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन बिट है ये सबसे पहले आगे पहुंचेगा, मतलब जब ये यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा होगा तो सबसे पहले बी के पास इसके फर्स्ट बिट पोजीशन पहुंचेगी। तो वो फर्स्ट बिट पोजीशन अगर उसकी पहुंच गई, जब वो बी वाला हमारे मीडियम को सेंस कर रहा है, ठीक है, अगर वो मीडियम को सेंस करते हुए फर्स्ट पोजीशन पहुंच गई तो वो उसको बिजी मान के वो पैकेट सेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट बिट नहीं पहुंची उस टाइम तक, तो हो सकता है बी अपना फ्रेम ट्रांसमिट कर दे, और ट्रांसमिट करेगा तो इसकी जो ये फर्स्ट बिट है अगर उसी समय पहुंच गई ए की, तो ये कोलाइड कर जाएगा और आपका पैकेट लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। एक भी बिट अगर करप्ट हो गई तो कंप्लीट पैकेट विल गेट लॉस्ट, क्लियर। So you can see that in this diagram we are having nodes A, B, C and D. At time T1, node A sends the medium, and if it found ideal, then it will send their frame, clear. At this point you can say these are the points where the nodes are sending their packets or frame.
This is the point where node A sends the frame. This is the point where B sends the frame, B sends the channel and send the frame. And this is the point where C sends the channel and send the frame. And this is the point where D sends the packet after sensing the channel. Clear? So this is the frame propagation time. This is the time of frame propagation. Clear? For each sender A, B, C, and D. Clear? Now we come to the next. Okay. So my voice is clear to all of you, na? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in particular CSMA scheme, we need to follow three things. Clear? We need to notice three things or three methods. That is called persistent method. Clear? persistent मेथड आपका तीन फॉलो होता है एक CSMA प्रोटोकॉल में, जो कि अलोहा में नहीं होता है. ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है. अलोहा में देखिए चैनल अलोहा, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलोहा एंड CSMA स्कीम, तो अलोहा में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है अलोहा और CSMA में कि अलोहा डजंट फॉलो द परसिस्टेंट मेथड. उसमें कोई भी परसिस्टेंट मेथड फॉलो नहीं होता है. ठीक है, अभी मैं परसिस्टेंट बताऊंगा क्या होता है कि बट इट डज नॉट फॉलो एनी परसिस्टेंट मेथड. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. और दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो अलोहा सिस्टम होता है वो कभी भी चैनल को एक्सेस नहीं करता है. ठीक है, कैरियर मतलब जैसे ये CSMA क्या है, हर एक स्टेशन कैरियर चैनल को सेंस करता है प्रॉपर टाइम पे. वहां पे चैनल सेंसिंग इज नॉट देयर. ठीक है, दिस इज अनदर थिंग. उसके बाद थर्ड डिफरेंस क्या है कि हाँ, थर्ड डिफरेंस आपका क्या है कि जो अलोहा है, अलोहा में जो पैकेट ट्रांसमिशन है दैट इज टोटली रैंडम. ठीक है, जैसे किसी जैसे हमने बताया था आपको प्योर अलोहा में कि जैसे ही सेंडर के पास पैकेट आता है वो विदाउट वेटिंग, उसको किसी से ऑथेंटिकेशन नहीं लेना अगल बगल से, वो अपना पैकेट ट्रांसमिट कर देता है. और उसी वजह से कोलिजन होता है क्योंकि वो उसके पास वेट टाइम नहीं है. ठीक है, that have not any wait time. क्लियर? सो इसी वजह से वो कोलिजन हमारा डिटेक्ट मतलब हो जाता है. और CSMA में क्या है, CSMA में चैनल को प्रॉपर सेंस करेगा, वेट करेगा, वेट करने के बाद जब फिर से उसको आइडल कंडीशन मिलेगी चैनल में, तब वो पैकेट को सेंड करेगा. तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है. क्लियर? नाउ वी कम टू द परसिस्टेंट मेथड. persistent is what you can see here is the persistent method is given. Persistence means what should a station do if a channel is busy? ठीक है, what should a station do if the channel is busy or idle? We check that. So this method have been devised to answer these questions such that I persistent, non persistent and P persistent. ये भी पेपर में पूछा जाता है. ये ऐसे ही टर्म्स आपके पूछे जाते हैं. What do you understand by persistent method in CSMA protocol? Clear? So you need to know about this persistent method. So persistent is exactly defined कि if the channel is busy or idle, then what should a station do? Clear? Is it send the data or not sending the data, or it will wait for particular time instant? Clear? So these all three methods will define these things. Clear? So we will start with the first persistent method, that is called I persistent. We are having three diagrams over here. These three diagrams are for each different persistent method. That first one is for I persistent, this is for non persistent, this is for P persistent. Clear? So, and all three are given on the bottom side with proper definitions and what are the steps followed in each different persistent method. Clear? So in I persistent method, it is a simple and straightforward. In this method, after the station find the line idle, whenever the station find the line idle, line means your channel. Clear? It sends its frame immediately with probability I.
आई का मतलब यह इमीडिएटली मीन्स, या आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ही किसी स्टेशन को चैनल मिलेगा, वो सॉरी, जैसे ही किसी स्टेशन को चैनल आइडल मिलेगा, वो इमीडिएटली क्या करेगा, पैकेट ट्रांसमिट कर देगा। किसके अंदर? सिस्टम के अंदर। क्लियर? सिस्टम में पैकेट ट्रांसमिट कर देगा whenever it gets the channel idle. Clear? This is what? This is called I persistent. This method has the highest chance of collision because two or more stations may find the line idle at the same time. ठीक है? बहुत सारे केस में ऐसा भी होगा कि ऐसा तो है नहीं केवल हमारे पास एक स्टेशन है जो चैनल को सेंस कर रहा है, एट ए टाइम हमारे पास मल्टीपल स्टेशन है जो चैनल को सेंस कर रहे हैं, और अगर किसी एक स्टेशन को चैनल आइडल उस समय मिल रहा है तो दूसरे भी स्टेशन को चैनल आइडल मिल सकता है। ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, वो भी इमीडिएटली फ्रेम ट्रांसमिट कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपके कोलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस मेथड में कोलिजन आपका ज्यादा होने के चांस रहते हैं। क्लियर? So more station may find the line idle and send their frame immediately. So in this I persistent method, it may happen that most of the time the nearby channels found the system idle and sends the data immediately. Clear? So there may be a chance of collision at most of the time. Clear? Yes, sir. Okay, so एक मिनट जरा सा. Okay, so you can see with this is the diagram, the upper side diagram. Clear? You can see in this particular diagram, this portion is the channel. Clear? So if the channel is busy, you can see all the stations are continuously sensing the channel. Clear? This is what mention is continuously sense. Clear? So all the stations are sensing the channel continuously. If the channel is busy, they will not send the data. But whenever the channel is idle, suppose here the channel is idle. So if the channel is idle, they transmit the data immediately. Clear? In this portion, they will transmit the data immediately because there is no busy condition. So all the station when transmit the data immediately, then most of the time the collision may happen. Clear? So to avoid this problem, we move to what? In non-persistent method. Clear? So in non-persistent method, a station that has a frame to sense the line. In non-persistent method, a station that has a frame to sense the line. This is the diagram for the non-persistent. Here, if the line is idle, it sends immediately. If the line is not idle, it waits for a particular time. Clear? मतलब क्या है, हर एक स्टेशन फ्रेम को भेजने से पहले स्टेशन लाइन को सेंस करेगा, अगर लाइन आइडल है तो भेजेगा और नहीं तो नहीं भेजेगा, कुछ टाइम के लिए वेट करेगा। यहाँ पे वेटिंग टाइम इज देयर। क्लियर? सो यू कैन सी दैट देयर इज ए वेट इंटरवल. You all can see there is a wait interval in between each station sensing. Clear? सभी को दिख रहा है ये डायग्राम में वेट इंटरवल? Yes, sir. ओके, सो यू कैन सी. मैं थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा. नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना? ओके, सो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक स्टेशन ए है, देयर इज ए स्टेशन ए, उसने सेंस किया. ठीक है, एंड देयर इज ए स्टेशन बी, उसने भी सेंस किया. व्हाटएवर जितने भी स्टेशन होंगे वो क्या करेंगे, चैनल को सेंस करेंगे. अगर मान लीजिए ए ने सेंस किया और उसको दिखा कि हमारा चैनल बिजी है, ठीक, तो बिजी है तो वो क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए वेट करेगा. दिस इज द वेट टाइम. ठीक है, वेट करने के बाद अभी हम एक ही की बात कर लेते हैं. वेट करने के बाद वो फिर से सेंस करेगा चैनल को, और अगर सेंस करने पे उसको दिखा कि हमारा जो है सिस्टम आइडल है,
या अभी भी बिजी है, तो सेंस करने के बाद फिर से वेट करेगा। ये देखिए फिर से यहाँ वेट कर रहा है रहेगा। और जैसे ही इसको यहाँ पे जब देखा, यहाँ पे हमारा सिस्टम हमारा आइडल कंडीशन में आ गया, तो उसने फिर सेंस किया कि अब हमारा सिस्टम बिजी नहीं है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट कर दिया। क्लियर? तो इन दिस नॉन परसिस्टेंट मेथड, exactly, it just wait for that particular time instant before sending the data. Clear? Okay, समझ में आ Yes, रहा है sir. ये? ओके, सो बट जो वेट करता है वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करता है। ऐसा नहीं कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम तक, वो रैंडमली कोई भी टाइम तक वेट कर सकता है। एंड सेंस द लाइन अगेन, मान लीजिए हमने 5 सेकंड पर, अभी मान लीजिए इस टाइम पे मैंने चैनल को सेंस किया, चैनल हमको बिजी दिखा, तो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर मैंने सोचा 10 सेकंड के लिए मैं और वेट कर लेता हूँ। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मतलब मैं मुझे कोई टाइम स्लॉट नहीं है, मैं 10 सेकंड के लिए रैंडमली वेट कर रहा हूँ। और फिर से सेंस किया, तो उस सेंसिंग में क्या हुआ कि फिर से हमको अगर वो बिजी दिखा तो फिर मैं अगले 15 सेकंड वेट कर लूंगा। ठीक है, दिस 10 सेकंड इज नॉट डिफाइंड टू मी, मैं मतलब 10 से 15 भी हो सकता है, 15 से 20 भी हो सकता है, मैं वो जितना भी टाइम चाहे स्टेशन वेट कर सकता है रैंडमली। क्लियर? तो इस रैंडम में क्या होता है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मान लीजिए ए भी 10 सेकंड वेट किया और बी भी 10 सेकंड वेट किया। जो स्टेशन बी है उसको भी हो सकता है उस समय चैनल बिजी दिख रहा हो, स्टेशन ए को भी बिजी दिख रहा हो। तो ए भी रैंडम वेट कर रहा है और बी भी रैंडम वेट कर रहा है। और मान लीजिए कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ए भी 10 ही सेकंड का वेट किया और बी भी 10 सेकंड का वेट किया। 10 सेकंड बाद चैनल आपका क्लियर हो गया, चैनल आइडल हो गया, तो ए को भी चैनल आइडल दिखेगा और बी को भी चैनल आइडल दिखेगा। तो ए भी उस समय डेटा भेज देगा, बी भी डेटा भेज देगा, तो वो दोनों जाके कोलाइड कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, होगा लेकिन हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैं जैसे दो इंसान है, दो इंसान को अगर मैं कोई काम अलॉट करता हूं, तो हो सकता है एक पर्सन जो है उस काम को 5 मिनट में करके दे दिया, और ये हो सकता है दूसरा पर्सन भी 5 मिनट में ही करके दे दे। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा, लेकिन होने के चांसेस हैं कि वो दोनों एक ही टाइम पे उस काम को कंप्लीट कर दें। और जब कंप्लीट कर देंगे तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 100% हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, वही चीज मैं स्टेशन के लिए भी अप्लाई कर रहा हूँ। एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, दोनों चैनल को सेंस कर रहे हैं। ठीक है और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ए ने उसको 5 मिनट में किया, बी ने 5 मिनट 20 सेकंड में किया, या 5 मिनट 2 सेकंड में किया। तो वो जो 2 सेकंड का मार्जिन आ गया, उस 2 सेकंड के मार्जिन में जब बी सेंस करेगा तो उसको ए का पैकेट दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो उस समय वो उसमें डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगा। हो सकता है ए की फर्स्ट बिट वहां तक पहुंच जाए और वो उसको सेंस कर जाए और उस समय डेटा ना भेजे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका मतलब ये सेंसिंग की मैं बात बता रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि पहली वाली कंडीशन भी अराइज हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो ये नॉन परसिस्टेंट मेथड में ये प्रॉब्लम है कि रैंडम वेट टाइम जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि किसी दो पैकेट के लिए सेम रैंडम टाइम हो जाए, मतलब दोनों एक ही टाइम पे वेट कर रहे हो। ठीक है ना? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसमें आप सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, थ्रू विच आई कैन रिकॉग्नाइज दिस इजीली, मतलब थोड़ा सा मुझे आसानी होगी अटेंडेंस लगाने में आप लोग की। ठीक है, लेकिन इसमें फिर भी हमारा कॉलिजन कम हो जाता है। अगर हम परसिस्टेंट मेथड की बात करें, आई परसिस्टेंट, तो उससे हमारा कॉलिजन काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहां पे तो वेट टाइम है ही नहीं, वहां पे इमीडिएट ट्रांसमिशन होता है। और पी इस वाले में क्या होता है, इसमें वेट करता है, रैंडम टाइम के लिए वेट करता है, भले टाइम रैंडम है लेकिन वेट जरूर करता है। तो इससे क्या होता है कि एफिशिएंसी जो है हमारे सिस्टम की उससे थोड़ी बेटर हो जाती है। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग आते हैं पी परसिस्टेंट पे। तो पी परसिस्टेंट मेथड क्या होता है, यू कैन सी दिस इज द पी परसिस्टेंट।
The P persistent method is used if the channel has time slots with a slot duration equal to or greater than the maximum propagation time. Clear? जैसे हर एक स्टेशंस के पास, ठीक है, मीन्स यू कैन से इफ जो हमारा स्लॉट ड्यूरेशन होगा वो हमारा प्रोपगेशन टाइम से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और होगा भी ऐसा। इसको हम पी परसिस्टेंट मेथड इसीलिए बोलते हैं। इट इज यूज्ड इफ द चैनल हैज द टाइम स्लॉट विद ए स्लॉट ड्यूरेशन इक्वल और ग्रेटर देन मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम। The P persistent approach combines the advantage of the other two strategies. क्या advantage है? It reduces the chances of collision and improve the efficiency. Clear? In this method, after the stations find the line idle, it follows three steps. ये तीन steps ये सॉरी दो steps को follow करेगा अगर उसको हमारा लाइन आइडल मिलती है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या, पहला स्टेप क्या फॉलो करेगा? विथ प्रोबेबिलिटी पी द स्टेशन सेंड्स इट्स फ्रेम, अपना फ्रेम वो सेंड करेगा स्टेशन एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी पी से। क्लियर? विथ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, सेकेंड पॉइंट क्या है? विथ प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी द स्टेशन वेट्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट एंड चेक द लाइन अगेन। अगर मान लीजिए नेक्स्ट टाइम स्लॉट में उसको फ्रेम भेजना है तो वो 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी से वेट करेगा, ठीक है। विद प्रोबेबिलिटी q इज इक्वल टू 1 माइनस पी द स्टेशन वेट फॉर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट। मैंने आपको बताया था एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम स्लॉट फ्रेम सेंड करना होता है, ठीक है। इन बिटवीन द टाइम स्लॉट फ्रेम आप नहीं सेंड कर सकते, स्टेशन फ्रेम सेंड नहीं करता है। जब भी टाइम, अगर मान लीजिए वो उसका पहला टाइम स्लॉट छूट गया है तो नेक्स्ट टाइम स्लॉट के लिए वेट करता है और स्टार्टिंग टाइम पे ही वो भेजता है। जैसे मान लीजिए ये टाइम स्लॉट हमारा स्टार्टिंग टाइम स्लॉट है तो यहीं पे फ्रेम सेंड करेगा सिस्टम में। अगर ये यहाँ पे इस टाइम को मिस कर जाता है तो नेक्स्ट टाइम स्लॉट के लिए वेट करेगा और फिर देखेगा कि हमारा चैनल आइडल है कि नहीं, तो उसके बाद ही वो भेजेगा, ठीक है। तो इसमें भी हमारे दो पॉइंट्स हैं। इफ द लाइन इज आइडल इट गोज टू स्टेप 1। अगर जैसे मान लीजिए पहला फ्रेम टाइम वो मिस कर गया, पहला स्लॉट मिस कर गया, तो वो q इज इक्वल टू 1 माइनस पी टाइम पे स्टेशन वेट करके फिर से दोबारा सेंस करके और फिर से टाइम सेकंड टाइम स्लॉट में अपना सेंस